हेलो बच्चों, आज अपना इलास्टिसिटी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग करेंगे हुक्स लॉ, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हुआ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सो ऑन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, देन नाउ लेट्स स्टार्ट। हुक्स लॉ। Hooke's law. Hooke's law states that when deformation is small, a stress in a body is proportional to corresponding strain. Okay? तो कह सकते हैं when deformation is small, a stress in a body is proportional to corresponding strain. That is stress proportional to a strain. और ये बच्चे होंगे stress divided strain equal to constant is K, and this constant K is known as the coefficient of elasticity. K, coefficient elasticity, or modulus of elasticity. ओके, इसे कहेंगे। नाउ yes, this modulus of elasticity K does not depend upon a stress and a strain. Okay, that means to say K depends only on the type of material used. तो कह सकते हैं modulus of elasticity depends only on the type of material used. Modulus of elasticity depends only on the type of material used. It does not depend upon the value of a stress and a strain. Clear? Now, ये हुआ हुक्स लॉ। अब देखते हैं बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे, it is defined as the ratio of a stress, longitudinal stress to longitudinal strain. तो कह सकते हैं y, Young's modulus of elasticity equal to longitudinal stress to the longitudinal strain. ओके, और ये होंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये क्या हो जाएंगे, चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ। तो वी मे से दैट डेल्टा एल बाई एल, इट बिकम्स वाई इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। क्लियर? चलिए अब बच्चों देखेंगे
The SI unit of Young's modulus of elasticity is, its SI unit is कितना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे SI unit? A strain is unitless, a strain is unitless, thus it is dimensionless, and the SI unit of a stress is कितना हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो SI यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट्स डायमेंशन इज m L inverse t power minus 2. Clear? This is your Young's modulus of elasticity. ये हो गया. इसी में एक और आएंगे, bulk modulus of elasticity. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बच्चों क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वी मे डिफाइन, वी मे डिनोट K, एंड दिस K इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक stress to the volumetric strain. हम कह सकते हैं we may say that bulk modulus of elasticity is defined as the ratio of volumetric stress to the volumetric strain, or we may define it is the ratio of change in pressure. It is defined as the ratio of change in pressure to the volumetric strain. Now see here, volumetric stress equal to the force per unit area divided by, okay बच्चों, force per unit area divided volumetric strain, ये हो जाएंगे delta V by, sorry, del V by V. This is negative, and force per unit area is your pressure, तो हम कह सकते हैं change in pressure minus delta P divided by delta V by V, that is mode of elasticity K equal to the V minus V into dP by dV. This is the bulk modulus of elasticity, यानी it may be defined as the ratio of change in pressure to the volumetric strain. Clear? ये हुआ bulk modulus of elasticity. Clear? And the SI unit of bulk modulus of elasticity is वही होगा जो यंग्स मॉडुलस का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, compressibility. Compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus of elasticity. तो compressibility C equal to 1 by K, ये हो जाएंगे compressibility. The compressibility is defined as the compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus of elasticity. Clear? ये होंगे. Okay. Then one another term is modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity बच्चों होंगे eta equal to the tangential or shearing stress to the shearing strain. Okay, ये होंगे. Modulus of rigidity is defined as the ratio of shearing stress to the shearing strain.
ये हो जाएंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। And in the SI unit of modulus of rigidity is same as that of bulk modulus of elasticity or modulus Young's modulus of elasticity। क्लियर, ये रहेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा नाउ, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज okay, question, find out the shift in the point B, C and D। okay, find out the shift in the point B, C and D where Young's modulus of YAB equal to the 2.5 into 10 to the power 10 Newton per meter square, YBC equal to the 4 into 10 to the power 10 Newton per meter square, and YCD equal to the 1 into 10 to the power 10 Newton per meter square, and A is the area of this rod is 10 to the power minus 7 meter square। okay, now find out the shift in the point B, C and D। देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है इनका। यस, चलिए ट्राई करो आप। चलो बच्चों, तो देखेंगे सॉल्यूशन इनमें क्या होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y इक्वल टू द फोर्स बाय एरिया, ओके, और डेल्टा L बाय L, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले शिफ्ट निकालना है क्या, कि B, C और D के पास YA to B यहां पर कितना दिया हुआ है अपने पास। तो देखेंगे YAB इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, और लेंथ एट व्हाट, A to B, AB डिवाइडेड बाय A इज द एरिया, एंड डेल्टा L, अपने को डेल्टा L ही फाइंड आउट करना है। क्लियर, देन delta L equal to the FLAB divided by YAB into area equal to the force। फोर्स से क्या होगा, ये जो रॉड है और इस रॉड में जो है ये जो ब्लॉक है, ये जो हैंग्ड है वर्टिकली, तो जाहिर सी बात है यहाँ फोर्स कितना होगा, mg। तो फोर्स इज mg, यानी F इक्वल टू द mg इक्वल टू 10 into 10 इक्वल टू द दैट इज 100 न्यूटन। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB, तो LAB कितना दिया 0.1 डिवाइडेड बाई YAB कितना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.5 into 10 to the power 10
मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एंड एरिया इज इट्स 10 पावर माइनस 7। तो आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आएंगे यहां पे, जल्दी से सॉल्व करके देखिए कितना हो रहा है। 40 हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि 2.5 है तो 2.5 है यहां पर, तो एक जीरो हो जाएगा तो 40 हो गए। और फिर यस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3, 10 माइनस 7, ये कितना 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 3, और ये 40 इंटू 0.1 1/10 तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एल ये होंगे, और ये बच्चों क्या होंगे मीटर में। तो फर्स्ट शिफ्ट तो आ गया आपके पास, तो डेल्टा एल कितना आ गया यहाँ पर। ठीक है, आप इसे कहेंगे डेल्टा बी भी कर दो आप, डेल्टा एल ऑफ एट बी, क्योंकि बी के पास शिफ्ट किए हो, क्लियर है ना। उसी प्रकार आप इसको निकालोगे सी का, तो यहां बच्चों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे डेल्टा एल सी इक्वल टू द, ठीक है, डेल्टा एल सी इक्वल टू यहां से ले लेंगे, यहां से जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस फॉर्मूलेशन देखेंगे, तो डेल्टा एल सी इक्वल टू द ये हो जाएंगे फोर्स एल, एल कितना हो जाएगा यहां पर, तो लेंथ ऑफ बीसी, BC डिवाइडेड बाई A इंटू वाई ऑफ BC, क्लियर है बच्चों, ये होंगे, और प्लस डेल्टा एल भी लिखेंगे, क्योंकि ये भी यहां भी तो शिफ्टिंग हुआ है, तो प्लस डेल्टा एल बी करोगे आप, और ये हो जाएगा फोर्स 100 मल्टीप्लाइड बाई LBC कितना हो गया, यस 0.2 डिवाइड बाई एरिया हो जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई YBC कितना दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10, क्लियर बच्चों, प्लस डेल्टा एल भी आपके पास आया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू द, इसे अभी आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएंगे 425, यस 425 और 25 इंटू 2 तो ये हो जाएंगे 50, यस 5 और इंटू 10 टू द पावर यहां होंगे बच्चों 3, तो माइनस 3 और प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहां हो जाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यहां हो जाएंगे डेल्टा एल सी। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार आप ये सॉल्व कर लोगे, डेल्टा एल डी अपने को फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा एल डी कैसे हो गया, आप लिखोगे यहां पर, तो एफ इंटू एल सी डी डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई सी डी प्लस डेल्टा एल सी। इसे आप सॉल्व करोगे इस बेसिस पर, तो ये क्वेश्चंस इजी वे में आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर इतना आना चाहिए। आप ये लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 24 mm भी होगा, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू द हो जाएंगे 10 टू द पावर 3 mm ये होते हैं। ओके, यहां कितना होगा 9 mm भी होगा। चलिए अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक हम लोग एडवांस का देखेंगे, जो जेई एडवांस 2013 में पूछ रखा है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी बेसिस पर। क्वेश्चन
चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का। इसमें क्या है, वन एंड ऑफ अ थिक कॉपर वायर of length 2L and its radius is 2R is welded to another thin copper wire of length L and its radius is R। ओके, ये चीज है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो और दोनों साइड क्या होगा, सेम फोर्स, ओके सेम फोर्स। तो आपके पास क्या रहेगा, when the arrangement is stressed by applying forces at two ends, okay, when the arrangement is applying forces at two ends, same forces, then the find out the question रहेगा, find the ratio of elongation, find the ratio of elongation of thin wire to thick wire। Okay, find the ratio of elongation of thin wire to thick wire is क्या होंगे इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ elongation of thin wire to thick wire is, ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट 0.4 मीटर, सॉरी 0.4, बी हो जाएंगे 2.0, सी बच्चों हो जाएंगे 0.25 एंड डी हो जाएंगे 4। इन चारों में से क्या होगा ऑप्शंस में। ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। आपके पास दो कॉपर वायर है, एक थिक वायर है और दूसरा है थिन वायर, और दोनों को क्या वेल्डिंग किया गया है, और दोनों पर दिस अरेंजमेंट इज अप्लाइंग बाय, ठीक है ना, अप्लाइंग फोर्सेज एट टू इंच, दोनों पर क्या होगा, फोर्स सेम फोर्सेज से उनको क्या होगा, स्ट्रेच किया जा रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ थिन वायर टू थिक वायर इज, आप इसे फाइंड आउट करोगे। तो चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। यस बच्चों बोलो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इक्वल टू, अपने क्या पढ़ा है, y इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां हो जाएंगे डेल्टा L बाई L, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट वायर के लिए देख लेते हैं। तो भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम रहेगा, क्लियर है। तो चलिए अपने को फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा L, तो हम इसे कर लेते हैं यस, चलो चलो इस वायर को बच्चों आप ले लो वायर 1 और ये वायर हो गया 2, समझने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर ये वायर 1 वायर 2, डेल्टा L1 इक्वल टू द F L1 डिवाइडेड बाई A इंटू वाई, क्लियर है। ये हो गया फॉर थिक वायर के लिए, थिक वायर, ये थिक वायर के लिए हमने लिया। और थिन वायर के लिए भी कितना हो जाएंगे, डेल्टा L2 इक्वल टू द F L2 डिवाइडेड बाई A इंटू वाई, यहां हो जाएंगे, क्लियर है। यस हाँ, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा A1, और इसका एरिया आप ले लोगे A2। क्यों एरिया सेम नहीं होगा, क्योंकि एरिया इक्वल टू आप पढ़ रखे हो कि एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला होता है। और दोनों का रेडियस क्या है, डिफर कर रहा है, ये थिक है और ये थिन है, तो जाहिर सी बात है इनका रेडियस में भी डिफरेंस होगा, इनका रेडियस 2 और इसका रेडियस है r। चलिए तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और ये अपना क्या था, थिन वायर का, ये थिन वायर। तो बच्चों इनमें क्या होगा, थिन टू द थिक है, तो डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय डेल्टा L1 इक्वल टू द
FL2 divided by A2Y divided by FL1 divided by A1Y। हम देख रहे हैं FY दोनों कैंसिल होंगे, तो ये बच्चों होंगे L2 A1 डिवाइडेड बाय L1 A2। क्लियर? ओके। L2 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएंगे L, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई, रेडियस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 बच्चों है यहां पर 12 इंटू एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर, तो R कितना? 4 R स्क्वायर ये होंगे। आप सॉल्व करोगे तो यहां से पाई R स्क्वायर कैंसिल, और ओ नो सॉरी, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब देखोगे L2 कितना दिया हुआ है? L2 L इंटू एरिया A1, तो A1 हो जाएगा पाई इंटू 4 R स्क्वायर। क्लियर है? डिवाइडेड बाई L1 हो जाएंगे बच्चों L1 12 इंटू A2 एरिया इनका पाई R स्क्वायर। अब देखो आप यहां से पाई R स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, L भी कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बचेगा? 2 2 4, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2/1। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन देखोगे, फाइंड द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ थिन वायर टू द थिक वायर इज, तो आंसर कितना हो गया? 2:1 कहोगे तो आंसर 2:1। तो आंसर एक्चुअली में कितना होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई एडवांस 2013 का। क्लियर? देखेंगे, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं इस टॉपिक को। इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज दैट अ रोप इज हैंग्ड वर्टिकली, अ रोप इज हैंग्ड vertically, and the length of this rope is L, and its mass is M. M is the mass. Clear? Consider a rope of mass M and length is L. Okay. Then tension will be different at different points. लेंथ हो गए बच्चों, टेंशन will be different at different points. ओके, सो अगर टेंशन अलग होंगे, हर पॉइंट पे अलग अलग होंगे, देन thus a stress and a strain will be also different at different point. ओके, ये होंगे। देन मैक्सिमम
stress maximum stress is at hanging point and minimum stress is at lower end. ओके, ये हुआ, कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग समझेंगे नाउ। अब देखेंगे, कंसीडर an element dx, consider an element dx at a distance x from lower end. Okay, consider an element dx at distance x from lower end. तो ये लोअर एंड हो गया बच्चों, और यहाँ पे हमने एक ले लिया, चूज कर लिया क्या, dx, ये होंगे अपना dx, और इनका डिस्टेंस कितना होगा, x लोअर एंड से डिस्टेंस हो जाएंगे यहाँ पर x। क्लियर है? कंसीडर एन एलिमेंट dx at distance x from lower end. Then what will be tension at this point dx? Then tension at dx, टेंशन एट dx कितना हो जाएगा, T इक्वल टू द मास पर यूनिट लेंथ। कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर dx के पास मास पर यूनिट लेंथ हो गया इंटू ये लेंथ कितना, x इंटू z। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके पास टेंशन इक्वल टू द mxg। चलो यही हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया टेंशन। नाउ स्ट्रेस, टेंशन पर यूनिट एरिया, तो mxg divided by al. This is the stress. Okay, now according to Young's modulus of elasticity, elasticity, y equal to mgx divided by l divided by, अब यहां पर क्या होंगे, ठीक है, तो हमने क्या माना, लेट यहां कंसीडर कर लेते हैं, या कंसीडर या लेट इलोंगेशन बी dy इन द dx। ये जो dx एलिमेंट है इसमें इलोंगेशन कितना हमने मान लिया, dy, ठीक है, तो ये हो जाएंगे dy बाई dx। तो लेट यहां से मान लीजिए dy क्या हुआ, तो dy इज द लिख लेते हैं, dy is the elongation in the element dx, element of length dx, ठीक है, तो ये dy is the elongation in the element of length dx, then mg
एक्स एम जी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई ए एल इक्वल टू बच्चों हो जाएंगे ये वाई, देन यहां हो जाएंगे सो एम जी एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई यहां डी वाई डिवाइडेड बाई ए एल। क्लियर है? चलो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर हमने इसको y से डिनोट हो गया करते हैं तो ये कंफ्यूजन की बात हो रही है। तो मान लीजिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप y डैश से इंडिकेट कर सकते हो, तो आपने क्या लिखा y डैश, ठीक है, ये y डैश ले लो, या आप चाहो तो यहाँ पर k भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा k ही एज्यूम कर लेते हैं, तो k ये k, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। चलिए k हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ये इलोंगेशन हुआ, ये कंप्लीट लेंथ कितना है l है, ये कंप्लीट लेंथ ऑफ रोप कितना है l है, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा डेल्टा l होगा, तो ये हो गया फ्रॉम 0 टू डेल्टा l, फ्रॉम 0 टू डेल्टा l, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो 0 टू l, 0 टू l। नाउ अब ये होंगे कांस्टेंट, बाहर निकालो आप, तो mg डिवाइडेड बाई एल, ये बाहर हो गए आपके पास xds, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 l0 इक्वल टू द k y डेल्टा डेल डेल्टा l 0, it becomes mg l square divided by 2al equal to k delta l। बच्चों यहां से एल एल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डेल्टा l इक्वल टू द mg l डिवाइडेड बाई 2a और ये ले लो आप k कांस्टेंट, ठीक है, 2a k। ये होंगे यानी डेल्टा L इक्वल टू द mgl डिवाइडेड बाय 2ak, वेयर k इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। k को यहाँ क्या बताया गया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर है? m इज द मास ऑफ रॉक, मास ऑफ रोप, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है लेंथ ऑफ रोप, a इज द एरिया एंड k योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डेल्टा l क्या हुआ, टोटल इलोंगेशन इन द रोप ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ओके, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जेईई एडवांस का 2019 का 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें ये होंगे 30 डिग्री, ये होंगे बच्चों 60 डिग्री, एंड अ ब्लॉक इज हैंग्ड whose mass is 10 kg। क्लियर है? जेईई एडवांस 2019 क्वेश्चन है, ये देखेंगे इसमें, और ये कॉपर वायर होंगे, दिस इज अ कॉपर वायर and its length is √3 meter, and this is your steel wire, और इनके लेंथ हो जाएगा बच्चों 1 मीटर, ठीक है, ये कॉपर वायर है, ये स्टील वायर है, एंड क्वेश्चन है फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज
2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and Young's modulus of copper is 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. क्लियर? ये क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ change in length of copper wire to find the ratio of change in length of copper wire to change in length of steel wire. ये आपका क्वेश्चन है. क्लियर है? यही क्वेश्चन है. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा. चलो देखिए, तो यहां से ये mg क्या एक्ट करेगा, mg, ठीक है, ये होगा बच्चों mg, और इधर हो जाएंगे आपके पास ये क्या हुआ, टेंशन. इस वायर पर क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन TC, टेंशन इन कॉपर वायर, और इसे हम कहेंगे टेंशन इन स्टील वायर TS. तो आप देखोगे ये 30 डिग्री है, ये भी कितने होंगे, 30 डिग्री होंगे ना, 30 डिग्री, ये होंगे आपके 30 डिग्री. तो ये हो जाएंगे आपके पास TC 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है. तो TC cos 30 डिग्री, और इधर हो जाएंगे आपके पास TS 60 डिग्री. ये क्या अल्टरनेट एंगल, ये भी होगा आपके पास 60 डिग्री. तो TS cos 60 डिग्री. ठीक है, आ रही है समझ में? तो चलिए यहां हो जाएंगे TS cos 60 डिग्री इक्वल टू द TC cos 30 डिग्री. बोलो बच्चों, TS एंड cos 60 डिग्री होता है 1/2, TS by 2 इक्वल टू द TC cos 30 डिग्री √3/2. 2 कैंसिल, तो यह हो जाएंगे TS इक्वल टू TC √3. क्लियर? ये होंगे, यहाँ पे होंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये क्या हो जाएंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में. एंड वी नो दैट, ये जानते हैं हम, वी नो दैट डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होंगे, फोर्स, या आप बोल सकते हो टेंशन. तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू F हो जाएंगे यहां पर. क्लियर? चलो बच्चों, तो Y स्टील इक्वल टू द, ये कितना हो जाएगा, Y स्टील, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है. तो यहां पर कितना हो गया, TS, ये TS होंगे, और TS बाई कितना हो जाएगा, TS पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई TS पर यूनिट एरिया हो जाएंगे. ठीक है, और डेल्टा LS by length of steel, तो equal to the TS into LS divided by A delta LS. क्लियर है?
तो डेल्टा एल एस इक्वल टू द टी एस एल एस डिवाइडेड बाई ए वाई एस, वाई स्टील कर देंगे। क्लियर है? और सिमिलरली उसी तरीके से बच्चों यहां कितना हो जाएगा, डेल्टा एल सी इक्वल टू द टी सी एल सी डिवाइडेड बाई ए वाई सी। क्लियर है? तो दोनों का एरिया क्या होंगे, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही है, क्वेश्चन में है वैसा चीज है कि दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो अपने को फाइंड आउट करना है देन डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस इक्वल टू द, तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके पास टी सी एल सी डिवाइडेड बाई ए वाई सी, ठीक है, और यहां हो जाएगा टी एस एल एस इंटू ए वाई एस। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे आपके पास। तो ए कैंसिल हो गया यहां पे, इक्वल टू द, अब देखोगे टीसी कितना है यहां पर, तो टीसी आप टीसी को क्या यहाँ यस टीसी इक्वल टू आप लिख सकते हो टीएस बाई रूट थ्री, तो टीएस बाई रूट थ्री टीसी मल्टीप्लाइड बाई एलसी, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना है आपके पास, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज द एलसी इज द लेंथ ऑफ कॉपर वायर रूट 3 मीटर, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है 2 है, कहा गया यहां पर देखो, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई वाई सी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितने हैं बच्चों 1 है यहां पर, तो 1 क्योंकि 10 पावर 11 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई टीएस, ये क्या है टेंशन इन स्टील, तो टीएस इक्वल टू टीसी रूट 3, टीसी रूट 3 हो सकता है यहां पर, यहाँ टीएस है ना, तो आप लिखोगे टीएस मल्टीप्लाइड बाई एलएस, लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है 1 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई 1, टीएस टीएस कैंसल, रूट 3 कैंसल, कितना आ गया 2:1, तो डेट इज डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस इक्वल टू द हो जाएगा 2:1। This is your answer 2:1। ओके, देखेंगे